Hello, good morning, everyone. Hello. Good morning. Morning, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. To you. Good morning, sir. Audible to you. Hello. Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So today we are going to start partial differentiation, right? Okay. So my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Done. Okay. So today we are going to start the second unit, partial differentiation. Now, what is partial differentiation? How we are going to use this? Let us take the when we are calculating the area of a rectangle, then it is given by a is equals to length into breadth, where a is length and b is breadth. So now a is depend on the two variable l and b, so which are independent variables. So when we are talking about partial differentiation, अब जब भी हमको सपोज हमारा पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक्स वाई प्लेन के अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सो वी आर टेकिंग द डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस। लेकिन जब भी हमको सरफेस में अगर हमको बात करनी है, ओके, सरफेस में सपोज अर्थ इज अ ग्लोब, ओके, वो पूरा ग्लोब जो है वो कैसा है, पूरा स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर के ऊपर अगर मुझे पॉइंट अगर लेना है तो कितने चाहिए मुझे, एक तो एक्स डिस्टेंस चाहिए, वाई डिस्टेंस चाहिए और उसकी हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो अगर वहां पर मुझे स्लोप की बात करनी है, जैसे एक्स वाई प्लेन में अगर मुझे स्लोप की बात करनी है तो हम उसको डिफाइन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अगर सरफेस में मुझे बात करनी है तो मुझे एक्स डिस्टेंस चाहिए, वाई डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ओके, तो अब वहां पे अगर मुझे टेंजेंट की बात करनी है, सो वी डिफाइन इट बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आती है। नाउ हियर अगर यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, सो इट इज गिवन बाय एल इंटू बी, सो द रिलेशन कैन बी रिटन एज it is a area it is given by it is a function of l and b. Okay, so when the l and b are two independent variable, so when we are talking about partial differentiation, if the independent variables are more than one, okay, एक से अगर ज्यादा है तो वहां पे हम partial differentiation की बात कर सकते हैं। Okay, so now we are considering z is equals to f of xy. This is the usual notation what we are denoting it. Okay, x and y are independent variable. Okay, so z वो dependent variable है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x and y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। So how it is denote the partial derivative of z with respect to x or with respect to y, whatever, there are number of independent variable, ऐसा जरूरी नहीं है कि z is a function of x y होगा, ठीक है, it may be a more than one independent variable, x y कुछ भी हो सकता है, p q, there are more than one independent variables are there। Okay, so here we are taking if z is equals to f of xy, then del z by del x, so partial differentiation of z with respect to x, it is denoted by del z by del x। Okay, so del z by del x equals to partial derivative of z with respect to x keeping y is constant। अगर यहाँ पे सपोज हमारा z is a function of x y and p, let us say x y and small p, तो अगर del z by del x करना है तो y और p को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। सो del z by del x लिख रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z एंड ऑल अदर variables we are treated as constant,
कांस्टेंट, तो दूसरे जितने भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, राइट। नाउ del z by del y, it means partial derivative of z with respect to y keeping x is constant, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है z is equals to f of x y, right. These are all about the first order partial differentiation. अब हायर ऑर्डर में भी जा सकते हैं. हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, हाउ इट इज डिफाइंड. सो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन नीचे क्या है, डेल एक्स इंटू डेल एक्स, तो वो कितना हो गया, डेल एक्स स्क्वायर. देयर आर सम अदर सिंबल्स आल्सो टू डिनोट पार्शियल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इट कैन बी डिनोटेड बाय जेड एक्स एक्स. जो सफिक्स में मैंने 2 बार एक्स लिखा है उसका मीनिंग क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. सेकंड देखिए उसके नेक्स्ट का, डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई. So how it can be written as zxy. So these are the various symbols to denote partial derivatives. Now next is del by del y of del z by del x. Once again it is del square z upon del y del x. And how it is defined, z y x. नीचे del y del x लिखा है तो इसको कैसे लिखोगे, z सफिक्स में लिखो x. Next is del by del y of del z by del y. So it is denoted by del square z upon del y square, and it can be written as z y y. Is it clear to everyone? सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Now तो ये जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, दिस आर ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन. देखो सब कितना ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. नाउ थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे, दिस वन डेल डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे क्यूब आएगा, नॉट इट इज नॉट डेल स्क्वायर जेड, इट इज डेल क्यूब जेड, और नीचे आएगा डेल एक्स क्यूब. सो इट कैन बी रिटन एज जेड एक्स एक्स एक्स, 3 बार आएगा, ठीक है. अब नीचे देखिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ऊपर होगा डेल क्यूब जेड और नीचे क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल एक्स, डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई, और दिस कैन बी रिटन एज जेड, नीचे डेल एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स एक्स आएगा और डेल वाई है तो लास्ट में आएगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द हाउ द पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोटेड, राइट. Okay, now let us take this example. If z into x plus y is equals to x square plus y square, then prove that. इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे, del z by del x minus del z by del y whole square is equal to 1 minus del z by del x minus del z by del y. और इसको सिंबल अदर कोई सिंबॉलिकली मुझे लिखना है इसको, हाउ इट कैन बी रिटन, del z by del x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कैसे डिनोट कर सकता हूँ, zx minus zy whole square equals to 4 1 minus zx minus zy. Okay, now what is here, here given is z is equals to x square plus y square upon x plus y. तो यहाँ पे जो प्रूव करना है उसमें कितनी क्वांटिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, कितनी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है मुझे, यहाँ zx and दो क्वांटिटी है, zx and zy. zx it is a del z by del x and zy is del z by del y. So z तो हमारे पास है, so differentiate with respect to x and y respectively, what we get. तो पहले del z by del x फाइंड आउट करते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, यू आर अप्लाइंग डिवीजन रूल. ओके, ये ऊपर भी x आ रहा है, नीचे भी x आ रहा है. आफ्टर अप्लाइंग डिवीजन रूल ये आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऊपर आएगा x y एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और y स्क्वायर का कितना होगा, 0. why it is 0? y कांस्टेंट लेना है. Yes, yes exactly. हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो दूसरे सारे वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो 0 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, और x प्लस y का क्या होगा, x का 1 होगा, ठीक है. सो फाइनली आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर. सिमिलरली वी आर फाइंडिंग del z by del y. वही प्रोसीजर से डिवीजन रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करना है. तो नीचे क्या आएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई एज इट इज, x स्क्वायर, अब del z by del y कर रहे हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का होगा 2y माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और वाई का हो जाएगा 1 और एक्स का 0 हो जाएगा. सो फाइनली आई एम गेटिंग वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. अब मुझे क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर. दोनों क्वांटिटी मैंने फाइंड आउट कर दी है, जेड एक्स एंड जेड वाई. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ जेड एक्स एंड जेड वाई हियर. दोनों की वैल्यू मैंने पुट आउट की. अब एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और ऊपर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 2xy विल बी कैंसिल आउट. ओके, तो वो फाइनल मिलेगा मुझे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और होल स्क्वायर भी है. ओके, सो डोंट फॉरगेट इट. सो दिस इक्वल्स टू, अब ऊपर फैक्टर निकलेंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक x प्लस वाई ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. तो फाइनल मुझे मिलेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब राइट हैंड साइड अलग से फाइंड आउट करते हैं. तो उसका भी आंसर कितना आना चाहिए? इक्वेशन 1 आना चाहिए. ठीक है, सो 4 इंटू 1 माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई. ओके, जेड एक्स की वैल्यू पुट की मैंने, जेड वाई की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया मैंने, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऊपर नीचे, ऊपर से क्या कैंसिल आउट हो, जितना भी कैंसिल आउट हो रहा है उतना कैंसिल आउट कीजिए. 2xy कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर इज कैंसिल आउट. सो फाइनली आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. So this equals to 4 into, now x square minus 2xy plus y square is x minus y whole square upon x plus y whole square. Call it as equation number 2. Now look at the previous one. Equation number 1 कौन सा मिला था? 4 into x minus y whole square upon x plus y whole square. तो equation 2 भी वही मुझे मिला. So what it proves? Left hand side is equals to right hand side. Okay, सबको समझ में आ रहा है? Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now go to the next example. U is equals to tan inverse y by x. This is given. What is given? U is equals to tan inverse y by x. So U is a function of x and y. Prove that del square u upon del x del y is equals to del square u upon del y del x. ये सिंपल एग्जांपल है. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड Hello, साइड. sir. यस Hello. Sir, यस 1 minute previous slide बता दिखाना. प्रीवियस. ओके, बोलो. हाँ, जस्ट अ मिनट. Previous. हाँ, यस, बोलो. हाँ, ओके. सर स्टार्टिंग में लिखा है ना, प्रूव दैट करना था, हमने डायरेक्ट क्यों ले लिया? dz dx माइनस dz dy होल स्क्वायर LHS इक्वल टू करके. प्रूव करना है. प्रूव करना है तो उसका मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए. हाँ, मैं लेके प्रूव कर दिया. ओके ओके. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वही अगर राइट हैंड साइड का आंसर अगर मुझे मिल गया है, अगर दोनों सेम मिले, सो व्हाट इट मींस? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके डन डन. ओके ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x. तो पहले अब ऊपर देखिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y. ओके, और उस राइट हैंड साइड पे क्या है? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x. तो पहले आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, क्वांटिटी है, उसको मैं पहले कर. तो उसमें आखिर में क्या आ रहा है? डेल एक्स आ रहा है. तो पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? डेल यू बाय डेल एक्स. उसका मीनिंग समझ लेते हैं. डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मीनिंग क्या होगा? बाहर डेल वाई है तो पहले क्या आएगा? डेल अपॉन डेल वाई इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा? डेल यू बाय डेल एक्स. तो टोटल हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स. तो अब डेल यू बाय डेल एक्स मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डेल यू बाय डेल एक्स. तो यू इज गिवन, तो क्या होगा? डेल यू बाय डेल एक्स, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इनटू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वाई इज कांस्टेंट हियर, सो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. तो फाइनली मुझे मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इन this del square u upon del y del x. It is defined by del by del y of del u by del x. अब del u by del x की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए. अब ये जो मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? del by del y ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसका मीनिंग क्या है? क्या है इसका मीनिंग? किससे डेरिवेटिव करना पड़ेगा? ये जो फंक्शन जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ करना पड़ेगा?
वाई से। वाई से क्लियर कट दिख रहा है। मैंने बाहर क्या लिखा है, डेल बाय डेल वाई, और एक फंक्शन है उसके साथ में, तो ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y। So finally, I am getting y square minus x square upon x square plus y square whole square. Call it as equation number 1. अब क्या फाइंड आउट करना, लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी, इट इज डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल वाई। यस डेल u बाय डेल y, क्योंकि वो लास्ट में, ठीक है, आखिर में वो है। तो डेल u बाय डेल y पहले फाइंड आउट करता है। तो डेल u बाय डेल y, u इज गिवन, सो तो वो मुझे मिलेगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज x अपॉन, नाउ यू कैन चेक इट इजीली, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, सो इट कैन बी रिटन एज डेल बाय डेल x ऑफ डेल u बाय डेल y। अब डेल u बाय डेल y तो मैंने फाइंड किया है, तो वो वहां पे मैंने प्रूव कर दिया। उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। ओके, कि ये डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू पुट आउट करने के बाद आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, यू विल गेट दिस आंसर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। So look at the equation number 1 and 2. Left hand side quantity is equals to right hand side quantity. So hence it is proved. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, if you have any doubt, then you can ask me. Okay. Go to, now we move to the next example. ये अच्छा example है. If theta is equals to t raised to n e raised to minus r square by 4t, obtain the value of n for which the given relation is satisfied. એટલે અહીંયા આપણે n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે for which value of n the given relation is satisfied. So relation is given. और इसी एग्जांपल को अगर मुझे दूसरे तरीके से पूछना है तो कैसे पूछ सकता हूँ, prove that 1 upon r square del by del r of r square del theta by del r is equals to del theta by del t. Prove that the given relation for थीटा इज गिवन। ओके, थीटा आपको दिया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऊपर का क्वेश्चन देखे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। यस -3/2। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको थीटा आपको दे दिया गया होगा और रिलेशन प्रूव करना है, या फिर आपको क्या दिया गया होगा, आपको रिलेशन दिया गया होगा और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला एग्जांपल कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रूव करना है वो आपको रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, दोनों एग्जांपल सेम ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। एक में n की वैल्यू गिवन है और दूसरे में n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सो आई एम टेकिंग द अबव क्वेश्चन, इफ थीटा इक्वल्स टू t रेज़ टू n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट इज -3/2 और नॉट। सो व्हाट इज गिवन हियर, थीटा इज इक्वल्स टू t रेज़ टू n e रेज़ टू माइनस r स्क्वायर बाय 4t। अब देखो, लुक एट द रिलेशन, लुक एट द रिलेशन हियर। फर्स्ट राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, कौन सी है, डेल थीटा बाय डेल टी, यस और नो, राइट हैंड साइड। तो पहले डेल थीटा बाय डेल टी फाइंड आउट करते हैं। सो डेल थीटा बाय डेल टी मींस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे दोनों में टी है। ठीक है, सो वी आर अप्लाइंग द मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। सो टी रेज़ टू एन का डेरिवेटिव होगा एन टी रेज़ टू एन माइनस 1 ई रेज़ टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t एज इट इज, प्लस टी रेज़ टू एन एज इट इज, ई रेज़ टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t का डेरिवेटिव होगा ई रेज़ टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, और आर स्क्वायर बाय 4t का डेरिवेटिव कितना होगा, आर स्क्वायर एज इट इज, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो वो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। अब दोनों टर्म में से जितना कॉमन निकल रहा है उतना कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, लुक एट हियर, टी रेज़ टू n माइनस 1 ई रेज़ टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t को मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में व्हाट इज द रिमेनिंग इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में से n रहेगा प्लस, अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखिए कि टी स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी रेज़ टू n माइनस 2, उनमें से n माइनस 1 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो कितना रहेगा, टी रेज़ टू माइनस 1, वो t मैंने नीचे ले लिया। सो n प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये मुझे राइट हैंड साइड जो डेल थीटा बाय डेल टी था वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड पे इनर मोस्ट कौन सा है? पहले मुझे कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। del theta by del r. यस एग्जैक्टली, डेल थीटा बाय डेल आर। पहला हमारा आम फाइंड आउट करવું પડશે डेल थीटा बाय डेल आर, પછી એને r સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, એ જે આવે એને ફરીથી મારે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ r ડેરિવેટિવ કરવું પડશે અને પછી છેલ્લે 1 अपॉन r સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે। क्लियर? तो अब फाइंड आउट करता है डेल थीटा बाय डेल आर। तो t रेस टू n एज इट इज e रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 का होगा e रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 और आर स्क्वायर का होगा 2r, सो माइनस 2r अपॉन 40, सो दिस इक्वल्स टू माइनस 1/2 r इंटू टी रेस टू n माइनस 1, टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t रेस टू n माइनस 1 इंटू e रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस क्वांटिटी बाय आर स्क्वायर, तो अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आर स्क्वायर इंटू डेल थीटा बाय डेल आर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाए, सॉरी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर का क्या हो जाएगा? आर क्यूब, सो माइनस 1/2 आर क्यूब टी रेस टू n माइनस 1 ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। रेडी? अब किससे डेरिवेटिव करना है? अब ये जो मुझे मिल रहा है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, सो देयरफॉर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ओके, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो वह माइनस 1/2 टी रेस टू n माइनस 1 तो बाहर निकल जाएगा। अब आर क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 का मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन वी आर अप्लाइंग हियर, सो व्हाट आई एम गेटिंग, देखो माइनस 1/2 टी रेस टू n माइनस 1 तो एज इट इज रहा। अब इसका कितना होगा देख लेते हैं, आर क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर, ओके, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 एज इट इज, प्लस आर क्यूब एज इट इज ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 का होगा ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 इंटू विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, सो माइनस 2r अपॉन 40। अब इन ये दोनों में से कितना कॉमन निकल रहा है, सो माइनस 1/2 टी रेस टू n माइनस 1, व्हाट इज कॉमन ईयर, एक तो निकलेगा ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 और दूसरा क्या निकल रहा है? आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर भी निकलेगा, तो उतना कॉमन निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म में क्या अंदर बचेगा 3 माइनस व्हाट इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट 3 माइनस आर स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा? आर स्क्वायर अपॉन 2t, ओके, सो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन द गिवन रिलेशन, अब नीचे मैंने रिलेशन लिखा है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द गिवन रिलेशन, सो व्हाट वी गेट, दोनों की वैल्यू रख दी, ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, तो रिलेशन इज गिवन, तो दोनों की वैल्यू अगर आप रखोगे, सो कंपेयर both the quantities, the left hand side as well as the right hand side, what will be cancel out, e raised to n minus 1 is cancel out, e raised to minus r square by 40 is cancel out, तो ये कितना आएगा माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन 40, वो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या होगा n प्लस आर स्क्वायर बाय 40, so r square by 40 r square by 40 will be cancel out, so finally you will get your answer, get the value of n, that is n is equals to minus 3/2। is it clear to everyone? Yes or no? yes or no, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे ये एग्जांपल समझाइए, ये और करके मैंने लिखा है उसमें क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन आई डील विद दिस एग्जांपल, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई हैव टू शो। सर n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या बच्चा प्रूव करना है, रिलेशन प्रूव करना है, थीटा इज गिवन, सिर्फ RHS इज इक्वल टू LHS फाइंड करना। हाँ बस एग्जैक्टली, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है हमको, ठीक है, थीटा इज गिवन ऑलरेडी। ऊपर में क्या था कि रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन थीटा भी दिया है, लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ आस्किंग ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट डू आई डू इन दिस एग्जांपल, क्या कर सकता हूँ उसमें, इफ u is given then find the value of this, तो बताओ इसमें क्या क्या मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले
u by dx and du by dy. du by dy नहीं है बेटा, डेल है, डेल पार्शियल Yes, sir. डिफरेंशिएशन का Del u by del x and डेल del एक्स u by del y. बाई डेल वाई। पहले डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करो, फिर डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करो, फिर जो मल्टीप्लीकेशन करना है डेल यू बाय, जस्ट अ मिनट। हाँ साहब बोल। હા હા એ તો એટલા માટે પૂછતો હતો કે સાહેબ આપણે આઈટીમાં પેન ટેબ્લેટ કરો તો પેન 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 હા 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 તો મારે એ નથી હે ને, ઓકે બસ એટલા માટે જ કરી સાહેબ, લેક્ચર તો ચાલુ થઈ ગયું છે, કરી દેજો. Thank you. હા બોલો, એ મોકલાવી દેજો ને સર, એ મોકલાવી દેજો. હા ઓકે ઓકે. હા એટલે એમને નંબર વાઇઝ નથી ના, મને ઈમેલ આવજો. પણ એ ફિક્સ છે ને સાહેબ, એમને એ ફિક્સ છે ને, રોલ નંબર ને બધું તો ફિક્સ જ છે ને. ઓકે એટલે એટલે એ જ આપણે અત્યારે કન્સિડર કરવાના છે ને ગયા વખત. હા ના ના, આમાં આમાં શું છે કે પછી પેલું ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં એક્ઝામ જ્યારે આ લોકોની લેવાની આવશે ત્યારે પછી એનો ફિક્સ હોવા જોઈએ. એવું હા તે પૂછી જોજો ને સર. હા હા ઓકે ઓકે ભલે ભલે, ઓકે સર. ओके तो ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो इसमें u इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करो, डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल यू बाई डेल एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, वो जो फंक्शन आ रहा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्लस करके जो है वो डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करके वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, आपका आंसर मिलेगा इसका 0, इसकी वैल्यू 0 आती है। ओके सो ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक। एंड टेल मी यू हैव ओनली 5 मिनट्स, सो हो जाएगा। ओके चलिए एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टॉप राइटिंग प्लीज। ये 2 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, उसकी फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, ये डिस्कस कर लेते हैं। नाउ प्लीज पे योर अटेंशन हियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इफ u is equals to, u is given, u is equals to log x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, prove that del by del x plus del by del y plus del by del z whole square on u is equals to minus 9 upon x plus y plus z whole square. Now what is this? Del by del x plus del by del y plus del by del z. Actually del by del x, it is nothing but an operator which operates on u, ठीक है। del by del x अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ del u by del x, इसका मीनिंग क्या है? what it means कि del by del x ये जो ऑपरेटर है, it is nothing but an operator which operates on u। तो del u by del x का मीनिंग क्या होता है कि आप del by del x ये जो ऑपरेटर है वो किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हो? u के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे देखे, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है del by del x plus del by del y plus del by del z whole square into u, that can be written as, अब स्क्वायर है तो इसको सेपरेटली मैंने लिखा है del by del x। अब ऑपरेटर होता है, सपोज आई एम राइटिंग एज डेल्टा स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखते हो आप? डेल्टा इंटू डेल्टा ऐसा लिखते हो, ठीक है, इफ इट इज एन ऑपरेटर। ओके तो यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा मैं? del by del x plus del by del y plus del by del z into del by del x plus del by del y plus del by del z into u। अब ये जो लास्ट में जो u के साथ में जो है, दैट इज नथिंग बट एन ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है वो किसके ऊपर ऑपरेट होगा? u के ऊपर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे मैंने जो करली लाइन करके ड्रॉ किया है, तो अब ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यू अंदर जाएगा, मीन्स डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यू एक्स यू वाई एंड यू जेड, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। नाउ यू इज गिवन, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा उसका, 1 अपॉन log ऑफ दिस, सो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 माइनस 3yz। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई मिलेगा आपको 3y स्क्वायर माइनस 3xz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एंड डेल यू बाय डेल जेड आपको मिलेगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ पे मैंने ux uy uz तीनों फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अब उसका एडिशन करना है, ux प्लस uy प्लस uz, तो तीनों का एडिशन करो, तीनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 बार निकल जाएगा, हर एक में से 3 बार निकलेगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट, इट इज x स्क्वायर माइनस yz प्लस y स्क्वायर माइनस xz प्लस z स्क्वायर माइनस xy अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो 3 बार निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अब डिनोमिनेटर में जो है उसके फैक्टर कौन से निकल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, किसी को याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, उसके फैक्टर कौन से निकलेंगे, इट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब ऊपर नीचे से वो कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली क्वांटिटी, जो पूरी क्वांटिटी जो है वो कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा मेरे पास 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये मुझे मिला डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। अब जो मैंने करली करके रखा है वहां पे ये क्वांटिटी रख दो, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो नाउ लेफ्ट हैंड साइड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। अब राइट हैंड जो वो करली जो मैंने लाइन जो की है उसकी जगह पे क्या वो क्वांटिटी मुझे कितनी मिली, इट इज 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड जो है इट इज नथिंग बट एन ऑपरेटर, तो वो बारी बारी किसके ऊपर ऑपरेट होंगे, जो फंक्शन जो मैंने लिखा है उसके ऊपर ऑपरेट होंगे। तो 3 को बाहर निकाल लिया मैंने। नाउ डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो इट इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स का 1 होगा वाई जेड का 0 हो जाएगा, माइनस अब डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, सो 1 अपॉन वंस अगेन इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड डेल बाय डेल जेड करोगे तो भी कितना मिलेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो टोटल कितना होगा ये 3 इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सो इट इज माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब देखो इसको we can also write like this, we could also write like this, del by del x plus del by del y plus del by del z whole square। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि वो ऑपरेटर है, तो इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, uxx plus uyy plus uzz plus 2uxy plus 2uyz plus 2xz। जैसे हम a plus b plus c होल स्क्वायर के में जो एक्सपेंशन लिखते हैं उसी तरीके से इसको भी लिख, लेकिन ये मैंने यूज क्यों नहीं किया क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इट विल बी वेरी लेंथी, ux uy uz uxy uyz uxz, तो इतनी सारी को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा है कि इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब होमवर्क में मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, सो टोटल कितने 4 एग्जाम्पल हुए। अब डिस्कस कर लेते हैं, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अब 4th एग्जांपल तो हो गया डिस्कस, लुक एट द एग्जांपल नंबर 5, u एंड v इज गिवन, तो क्या प्रूव करना है, डेल u बाय डेल r इज इक्वल्स टू 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा। तो अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको डेल u बाय डेल r फाइंड करना है, यहाँ पे डेल v बाय डेल थीटा फाइंड, तो दोनों को आपको प्रूव करना है, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इजी टू प्रूव। अब ये एग्जांपल, लुक एट द एग्जांपल नंबर 6, हेलो सर, लुक एट द एग्जांपल नंबर 6, यस हेलो सर। yes any doubt। सर ये स्टेप जो पेज नंबर 7 है ना उसमें जो सेकंड स्टेप है वो नहीं समझ आया, सेकंड से वो थर्ड स्टेप कैसे गया। look at here
del u by del x plus del u by del y plus del u by del z, वो मुझे कितना मिला? इट इज 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब यहाँ Yes, पे sir. देखिए, यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में मैंने लिखा होगा, इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। ओके, अब ये जो यहाँ पे बाकी रह जाता है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, अब ये पूरा ऑपरेटर है, वो ऑपरेट किसके ऊपर होगा? तो क्या 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर ऑपरेट होगा। and I apply this operator separately. Yes or no? Yes, sir. Got it, sir. Okay. Okay. Now look at the example number 6. U is given f of x plus 80 plus g of x minus 80. Prove that utt is equals to a square del square u upon del x square. तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें? del u by del t क्या आएगा? What is del u by del t? del u by del t कैसे डिफाइन होगा? देखो, del u by del t कैसे डिफाइन होगा? इट इज डिफाइन लाइक दिस, एफ डैश, क्योंकि एफ डैश का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए टी, सो एफ डैश एक्स प्लस ए टी इनटू एक्स प्लस ए टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? A. ए, सो ए इंटू एफ डैश प्लस जी माइनस ए इंटू जी डैश। ओके, पहले क्या होगा? जी डैश एक्स माइनस ए टी और फिर माइनस ए टी एक्स माइनस ए टी का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी? इट इज माइनस ए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए इंटू एफ डैश माइनस ए इंटू जी डैश, तो ए को कॉमन निकालोगे तो वो क्या होगा? एफ डैश माइनस जी डैश, ऐसा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए डेल यू बाय डेल एक्स करना है आपको, तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू टी था, राइट हैंड साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था। अब दोनों को कंपेयर करना है, वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। समझ में आ गया? यस और नो? Yes or no? Yes, yes, sir. Okay. Now example number 7 में क्या करना है? Find the value of uxx plus uyy plus uzzz. What is uxx? Del square u by del x square. Yes, exactly. Very good. uyy होगा del square u upon del y square. u तो 1 है, तो आपको अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, so is it clear to everyone? Hello, sir. Yes. पेज नंबर 6 डिस्प्ले कीजिए ना। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें जो सेकंड सॉरी लास्ट में जो किया ना आपने s क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से, वो स्क्वायर वाला पोर्शन आपने कैसे लाया? हाँ बेटा, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उसके फैक्टर कौन सा निकलेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऊपर का मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और डायरेक्टली भी आपको वो फॉर्मूला का जो लिस्ट, हाँ लिस्ट जो होता है ना, उसमें भी होता है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का जो एक्सपांशन जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, जो उसमें से आपको इसके दो फैक्टर ये निकलने वाले हैं। डन सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऊपर का मिल जाएगा। ये तो रेडीमेड फॉर्मूला ही होती है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके, सो एक एग्जांपल कर दीजिए, अभी आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद में वी विल स्टॉप हियर, ठीक है? कौन सा करोगे आप? ये वाला वैल्यू 0 वाला कर दीजिए, ये जो होमवर्क करके एग्जांपल नंबर 4 है ना, आप चेक कर लीजिए, वैल्यू 0 मिल रही है आपको, आंसर मैंने लिखा हुआ है इसलिए, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, देन वी विल स्टॉप हियर। सर यस सर, आप ये पीडीएफ शेयर करोगे? पीडीएफ शेयर करना, आप नोटबुक ही बनाओ ना। पीडीएफ शेयर करने का कोई ग्रुप है नहीं आईटी का कोई। सर प्लीज सर कर दो ना सर। छह सर, ग्रुप तो है सर ग्रुप। क्लासरूम में सर शेयर कर दो। क्लासरूम है मैथ्स का। सर हाँ तो फिर, हाँ तो ऐसा करो, कोई बात। और मैथ्स का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना? ना सर। आप बोलो तो बना देते हैं। बना देते हैं सर अभी 2 हाँ मिनट सर। में। हाँ बनाई दो ने, એવું કરો, બનાવી દો એક મેથ્સ નું અલગથી WhatsApp ગ્રુપ બનાવી દો, એટલે શું કઈ બી ડિસ્કશન કરવું હોય, કઈ બી કરવું હોય તો આપણને ઈઝી પડે, બરાબર? ओके, आप बना देना मैथ्स का एक WhatsApp ग्रुप अलग से, ठीक है? हेलो, am I audible to you? Yes sir.
હા Yes, ઓકે, હા વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવી લેજો બરાબર, એટલે શું ઈઝી પડશે આપણને Okay, કોમ્યુનિકેશન. sir. सर आप लिख के समझा सकते हैं? एबल टू राइट। हाँ अभी एक्चुअली सेटअप वो अभी हुआ नहीं है, वो वही बात कर रहा था, क्योंकि अभी वो एमएमएच में था, पॉसिबल था, लेकिन अभी क्या है कि वो सेटअप यहाँ पे क्लास में से निकालते हैं तो वो सेटअप पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी। सर अभी वो वापिस कब तक शुरू होगा मल्टीमीडिया रूम वाला? नो आइडिया बेटा, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो 10 अप्रैल तक का तो है ही। अब वो तो आप भूल ही जाओ कि कब होगा। ક્યારે ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે હવે કશું નક્કી ના કહેવાય એમ. लेकिन सर नडियाद में तो था ही नहीं ऐसा कि स्कूल मतलब कॉलेज અરે में આત્મા નગરપાલિકામાં નડિયાદ ક્યાં આવતું હતું સર? हाँ ના सर ના એવું ના ના એવું નથી, સાંભળો એવું નથી. એક બીજો એક ગાંધીનગરથી પરિપત્ર આવ્યો છે કે જેમાં સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી જ છે કે તમારે બધામાં ઇન ઓલ ઓવર ધ સ્ટેટ, આખા ગુજરાત રાજ્યમાં બધું બંધ, ઓફલાઈન ટીચિંગ બંધ કરી દો, એવું ગાંધીનગરથી લેટર આવ્યો. એટલે શું એ જે લાગે તમે સર લોકડાઉન આવશે હવે? હવે બેટા એ તો મને કોઈ ખ્યાલ નહીં. તમારે જોઈએ છે સર IPL માં લોકડાઉન? બધા જોવા જાય તે કઈ નહીં. હા એ તો છે બરાબર. એ તો હવે ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇસ્યુ ઓફ હાયર ઓથોરિટી, બરાબર, એ તો ગવર્મેન્ટે જોવાનું છે કઈ રીતનું છે. પણ આપણે હવે આ સિસ્ટમમાં કેવી રીતે કામ કરવાનું એમાં આપણે સેટ થવાનો પ્રયત્ન કરવાનો એમ કે ભાઈ આ સિસ્ટમ છે આપણી પાસે, હવે આની અંદર આપણે કરવાનું છે કામ. ઓકે સર એક પોઈન્ટર જો યુઝ કરો તો તમને ખબર પડે કે તમે કઈ લાઈન પર ફોકસ કરો. हाँ पर ये पॉइंटर नो सेटअप बेटा एमएमएच के अंदर जो सेटअप था ना वैसा सेटअप हो नहीं सकता है, आप समझो। वो सेटअप एज अ वहां पे अच्छा सेटअप था, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से। હેલો સર. हाँ बोलो। સર લાપ્લેસ એક ડાઉટ છે. આ જે ડિવિઝન બાય ટી વાળો હતો ને રૂલ, हाँ એમાં એક બેઝ ગ્રેવલમાં એક ક્વેશ્ચન છે કે 1 + cos t upon t સ્ક્વેર. આ તો ડિવાઇડ બાય t સ્ક્વેર છે તો આપણે ડબલ વાર ઇન્ટિગ્રલ કરવાનું st ઇન્ફિનિટી st હા ઇન્ફિનિટી. હા હા આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું તો ક્લાસમાં ડિસ્કસ થયો છે એક્ઝામ્પલ, આપણે ડબલ વાર કરવાનું, એટલે પહેલા 1 - cos t upon t થી આપણે કરવાનું, બરાબર, એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે, બરાબર છે, એનો જે આન્સર આવે ને એનું ફરીથી ઇન્ટિગ્રેશન કરો. ઓકે સર. અને આ એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ થયો છે આપણે ક્લાસમાં, તમે પૂછજો, તમે કદાચ તમે એબસેન્ટ ઓકે હશો સર. કે ખ્યાલ નહીં, હા તમે પૂછજો, એ આપણે થઈ ગયો છે, ઓપન ટી સ્ક્વેર વાળો થયો છે, બરાબર. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. Okay, okay. So now we will stop here. I think it's 9:50. Okay. Try करना आप लोग. If you have any doubt, then you can ask me. Okay. Chalo. Bye to everyone. થેન્ક યુ સર. Okay. हेलो सर. PDF आप IC हाँ. के ग्रुप में भी डाल सकते हो, हमारा हाँ व्हाट्सएप हाँ ग्रुप है. हाँ આઈસી નું તો છે, આઈસી નું છે, હું આઈસી માં નાખી દઈશ. આઈસી નું તો આપણે ફર્સ્ટ સેમ ની અંદર જ ગ્રુપ હતું, બરાબર ને? સર આઈટી નું IT ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હા ઓકે, તો એમાં એડ થઈ જાવ ને બધા, બરાબર, મને પણ એડ કરી દેજો. ઓકે. सर लैपलास ની પણ નાખી દેજો પીડીએફ. લાપ્લાસ ની નહીં હોય બેટા, એ તો આપણે ઓનલાઈન જ કામ કર્યું છે, બરાબર, લાઈવ જ કામ કરેલું છે, એટલે એની પીડીએફ નહીં, એ તો ત્યાં હશે, એ કોમ્પ્યુટરમાં હોય. ओके सर. ઓકે.